So before we start something, in general, do you have any queries about the course, flow of the course, the philosophy behind it? Any specific queries of yours? Public administration. Okay. So can you repeat the question once? Ma'am, is there is any source for other thought and other matlab, quotes for essay? Quotes. Yes, ma'am. Yes. Quotes to write or quotes to practice? Ma'am, quotes to practice and remember. That we will do. And I think you will not require anything beyond what we will be doing. And we will be giving you the content also. Anything else? We need any other source other than your class? No, because first thing is you should have some idea to use something. Fine. So reading without knowing is also of no use. And the second thing is you don't have that much time. And infinite essays and infinite quotes are there. You need to only develop ability to deconstruct. तो दिस इज द मेंटल एक्सरसाइज. इसको लाइव भी करने दो. हाँ, पहले ही करना था. तो वी विल बी डूइंग mental exercise because majority are already students, so they know my teaching technique, and the philosophy is, I believe any question can come. We should be prepared for anything. So we need not to prepare questions. We need to prepare our ability to think something on something which is unpredictable. And I believe that this particular class, its importance will be beyond essay paper. Because if you develop capability to think, this is what is required in all the papers. And essay paper requires what? The type of notes we will be giving you, they are going to be very comprehensive notes. And because essay has to be dealt with different dimensions. And maybe you will find that the topics and the notes which we will be giving in certain areas will be utilized and will be a good value addition for you in other papers, be it social justice, be it governance and other areas. Anything else? Fine. So understand basically how we have designed the course and what you can expect. So basically, what you should, how to utilize. See what is the demand, what is expected. The best thing is look at previous year question papers. Okay. And go for trend analysis. And philosophical essays is not a big thing. Do you find philosophical essays difficult? Huh? Philosophical essays are easiest. Yeah. Yes. You can ask question. मैम अच्छा, you were asking for pol science. यस मैम. Just repeat that. Yeah. मैम मेरा मतलब 2022 में क्लासेस यहाँ से हो चुके हैं, बट मुझे 27 में मीन्स अटेम्प्ट देने हैं. तो मैम क्या वो मतलब जो नोट्स है वो रेलिवेंट है या फिर नोट्स रेलिवेंट हैं क्योंकि नोट्स एक फाउंडेशन है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है. इतना पता ही होना चाहिए. जैसे
हमको हमेशा ओरल रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि हम इतना रीड भी नहीं कर सकते हैं। तो ओरल रिवीजन क्या है, आप नोट्स देख रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ऐसे सोचिए मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म के हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, क्रिटिकल स्कूल, who all are scholars of critical school, structural school. Before studying the notes, how much is already in your mind? First check that. Make a mental conceptual framework. And whatever you know, you need not to revise again. Because there is so much to know. Wherever you find you are not understanding, just refer that. The best way to remember something is not again learning anything in linear manner, which I focus so much in previous workshop. When we encounter a problem, when we encounter a challenge, then we utilize whatever information we have. We start putting our knowledge in context and we start learning things in a applied sense. तो बिना reference to questions, whatever learning and knowledge you are doing is of no use. You have, even if you will do 100 revisions, but without encountering the problem, you will not be able to utilize the information. So that is why test series is important. See the question, encounter it while you are writing, see do you have capacity to think. Some people prepare at home, but when they see the question paper, they go blank. Identify your problems, what happens with you, because only you can define what should be your method of preparation. That depends upon identifying your problem. You remember things, but you do not know how to utilize it. You write everything, you don't know how to write the crisp point. Do you feel? And best thing is, after test, you have to upload your answer. The best thing is you check your own answer. There cannot be any better judge of your work than you yourself. And at least you develop this capacity. More self-criticism you will do, तो more you will grow. तो पहले देखो, the way I am writing, do I deserve marks? And if you don't deserve marks, and see, is the other person is also thinking like that? बेस्ट है अपनी कॉपी खुद चेक करो और अपने को उस प्रॉब्लम में डालो. कोई शॉर्टकट नहीं है. मतलब if you have a opportunity to prepare for civil services, don't miss the opportunity. And when somebody can do in one attempt, single attempt, why not you? To find out why, if it is happening with somebody else, what I am not doing. And just now one student and their parents came. I just gave them, when will you become civil servant? आप IAS बनेंगे कब? क्या चीज आपको लगता है कि आपके अंदर हो तब आप IAS बन जाएंगे? क्या क्या हो? डिसिप्लिन हो और कंसिस्टेंसी हो. तो वो तो किसी भी काम में चाहिए. IAS बनने के लिए क्या खास चाहिए? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी हर फील्ड में चाहिए होता है. लीडरशिप भी हर जगह लगती है, टीचिंग में भी लेट. अब हम बता दें,
किसका हो सकता है और किसका नहीं हो सकता है। फाइन, मतलब मैं अपनी चीज बता रही हूं, बिकॉज आपके मतलब कई लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, कई लोग सोचते हैं कि इट इज अ वे फॉर लाइवलीहुड, इट्स अ गुड लाइफ, लेकिन सिलेक्शन, बिकॉज इट कंपटीशन इज वेरी हाई। आप ये पूछिए कि क्या आपको पावर का नशा है कि नहीं, ठीक है, कि क्या आप बिना पावर के रह सकते हैं कि नहीं। बिकॉज माई ओन डॉटर, बिकॉज everybody in India once in the life think to go for civil services. So every day she also decides, should I go, should I not? Then I said, you simply need to know how much you actually want power in your life, because you need lot of inner motivation. इसमें वही सक्सेस, क्योंकि इसमें जा ही वो इंसान रहा है जिसको पावर चाहिए। इसमें पैसे के लिए नहीं जाओ, इसमें रोजगार के लिए नहीं जाना है, क्योंकि वो चीज आपको मोटिवेट नहीं करेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। तो क्या तुम ऐसे इंसान हो, आर यू अ पर्सन, डू यू नीड पावर, पावर इज योर नीड और पावर इज योर वांट। क्या तुम्हें, अभी वही मैंने वहां पे भी उस लड़की को बोला, क्या तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है कि मैं चलूं, मेरे पीछे 10 लोग चलें, और ये तुम्हारी इनर डिजायर होनी चाहिए। क्या तुम्हें ये पसंद है, तुम चलो तो कोई दरवाजा खोले, तुम चलो तो कोई छाता लेके चले, क्या आप अपने को उसमें इमेजिन करते हो कि नहीं। क्योंकि अगर ये सिर्फ ऐसा है कि आई गेट अ गुड लाइफ, तो ऐसे आपको कोई और ऑप्शन दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं, यहां के लिए एक स्पेशल व्यक्ति चाहिए, एक स्पेशल जाति का इंसान चाहिए, जो जिसको ऐसा लगे कि मुझे पावर ही चाहिए लाइफ में। तब जाकर के अगर एक अटेम्प्ट नहीं तो दूसरा तो तीसरा वो सस्टेन कर पाता है। तो कई लोग होते हैं वो शायद वो मतलब आपके पास, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉज एंड यू नीड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन कम्स ओनली व्हेन योर रीजन इज वेरी क्लियर। कभी स्टेट दे देना, कभी सीपीएफ दे देना, कभी एसएससी दे देना, तो इसका मतलब है कि आपका नेचर कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है, और आप इसको एक अच्छी लाइफ या एक अच्छे जॉब के फॉर्म में देख रहे हैं। वो यहाँ का मोटिवेशन नहीं है। अगर किसको लगता है यहाँ पे ऐसे, किसको लगता है कि पावर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो वो अपने आप मोटिवेट करेगा। जितने लोगों को लगता है गुड लाइफ स्टाइल, सब बेकार है, ठीक है। बिकॉज इफ दैट थिंग इज मोटिवेटिंग यू, यू विल डेवलप कैपेसिटी टू हैंडल द फेलियर, ठीक है। एवरीवन, कई लोग क्यों क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे, वाई मेनी पीपल विल नॉट बी सक्सेस, not just because they don't know, they are not good at studies, but there will be many other factors. Their ability to see how are you managing your challenges, how are you managing your failure, because so long तुम्हारे अंदर ये एक है कि इसके बिना और कुछ नहीं, तभी कोई भी चीज तभी ही मिलती है, एटलीस्ट इस तरीके की चीज जिसके पीछे बहुत लोग हैं। वरना जिसके पीछे कंपटीशन नहीं है वो आसानी से भी मिलती है, ठीक है। तो वो शौक होना, जिसको मैंने अभी एक वर्ड बोला, चस्का, पावर का चस्का है कि नहीं, ठीक है, पावर फॉर द सेक ऑफ पावर, क्योंकि उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो इसलिए अपना डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग करना है। नॉलेज के लिए भी आप मेरा क्लास कर सकते हैं। हमारे क्लास से बहुत सारे लोग क्लास करते हैं, उनको पॉल साइंस बहुत अच्छा लगता है,
कोई जेएनयू चला जाता है, कोई हार्वर्ड चला जाता है, ऐसे भी अपना रीजन क्लियर रखो। और यहाँ उसी का होने वाला है जिसको चस्का है, जैसे पॉलिटिशियंस को चस्का होता है कि भाई हार गए फिर लड़ना है, फिर हार गए फिर लड़ना है, क्योंकि इसके लिए लोग बहुत सारे हैं। इसको नॉलेज, लर्निंग, वर्निंग ये सब कुछ नहीं चाहिए, चस्का चाहिए। ठीक है, तो चस्के से क्या होता है कि नींद भी नहीं आती है। ओके, जैसे ये पूछ रहे थे, तो हमको चस्का है कि मेरा लेक्चर अच्छा हो, समस्या ये है। ठीक है, तो इसलिए हम चाहे 2 घंटे सोए चाहे हम 3 घंटे सोए, मुझे क्लास में अगर लेक्चर अच्छा हो गया तो हमको लगता है मेरा ये रेस्ट हो गया। ओके, तो वही आप किस चीज का आपको चस्का है उसी को करिए, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। और आज मुझे यही लगा, ऐसे नहीं मतलब बस आ गए, ऐसे ही आ गए, सब आ रहे हैं, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, क्या तुम उस जाति के जीव हो, ठीक है, जिसको चस्का है। ठीक है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, वरना होगा नहीं। जैसे हम लोग एज अ पर्सन, मतलब सिविल सर्विसेज या ऐसा कुछ नहीं, हमारा था कि भाई कुछ अपना थोड़ा बहुत जॉब वॉब करेंगे, मेरा तो वो भी नहीं था। आई वॉन्टेड टू बी हाउस वाइफ, लेकिन ठीक है वो मेरा ओरिजिनल था, लेकिन ठीक है सिनेरियो ऐसे बन गया। तो उसके बाद ये था कि कोई भी जॉब के चक्कर में, ठीक है आज डीयू में एडहॉक मिल गया, आज आईपीए में रिसर्च ऐसे वो मिल गया, तो वो कर, क्योंकि हमें पैसे चाहिए थे, खर्चा करना था। तो पैसे खर्चा नहीं, मुझे लगा कि क्या मिसिंग था, वो चस्का नहीं था या वो समझ, वॉट एवर इज द रीजन। तो अब सक्सेस के लिए वो चस्का लगा लो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्या है, तो अब जब वो चस्का उसका लग जाता है ना, तो फिर थकान वकान नहीं होती, उसमें मजा आने लगता है। ठीक है, हारने में भी मजा आने लगता है। कई पॉलिटिशियन पता रहता है हारेंगे, फिर भी वो वाली स्पिरिट चाहिए। ओके फाइन, क्या ऐसे कोई नहीं है, मतलब इन पर्सन जिनको भी देखा है, इसलिए हम पॉलिटिशियन से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहते हैं। ठीक है, और वो इंप्रेशन यही है कि उनके अंदर कोई खास चीज होती है जो बाकियों में नहीं होती। ठीक है, तो वही है कि पावर का नशा टाइप ऑफ अ थिंग। या ऑफिसर्स नहीं, अबाउट what is essential, you should to get something you should have a drive. And ma'am, when we say its power, sometimes people takes it otherwise, like it's like You don't have to arbitrary. worry, जिसके पास पावर है वो दूसरों की चिंता नहीं करता है, तभी तो पावर है। जो दूसरों की चिंता कर रहा है उसके पास थोड़ी पावर है। No ma'am, like before becoming IAS, if we are तो saying तुम्हें power, शौक नहीं है ना उसका, तुम लोगों से डर रहे हो, तुम्हें वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है, तुम्हें अपनी इमेज, अपने दिमाग में इमेज बनानी पड़ती है कि जैसे इनकी ये बात अच्छी है। कई लोगों की, मैं जैसे क्लास में कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भले रेलिवेंट हो इररेलेवेंट हो, लेकिन मुझे वो पर्सनैलिटी पसंद है। ठीक है, कि वो डर नहीं रहा है इंसान, वो ये चीजें चाहिए। तो लोग कहते हैं, अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं एंड यू से यू आर हियर फॉर पावर, तो यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, ये तो आपकी इंटेग्रिटी है। पावर, वाई पावर इज बैड? पावर इज running this world. We word worship power. So how can power be bad? The only thing, and you need to distinguish that somebody going for power doesn't mean I am going to exploit somebody. ठीक है, you to do anything you need power. And if you need power is not bad thing. Why are you thinking? आपको अपना नैरेटिव किसी के ऊपर चिपका देना है, और अभी से ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना बहुत जरूरी है, और कभी किसी की बात नहीं मानना है।
यू शुड बी रिबल। ठीक है, जब आप रिबेल होते हैं तब जाकर के आप अपना एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश करते हैं। तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट हो जिसकी सोच से मुझे प्रभाव पड़े, ठीक है, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी चीज है कि हम क्यों गिव अप करें, हम उसको कन्विंस ही करा के मानेंगे कि हम जो सोच रहे हैं यही तुम्हें भी सोचना है। ठीक है, तो पहले डिफेंसिव नहीं होना है। जब हम इंटरनली, व्हेन वी आर स्ट्रांग इंटरनली, जब हम खुद से लड़ पाते तब हम बाहर से लड़ पाते हैं। ठीक है, और ह्यूमन नेचर कैसा है, वी इजिली लुक फॉर कंफर्ट। वेरी फ्यू पीपल विल बी एबल टू लीव कंफर्ट। तो तुम्हें मजा किस चीज में आ रहा है ये तुम्हें सोचना है, और चिंता नहीं करनी है, अपने आप को टेंशन फ्री, हम जैसे जैसे हैं वैसे ही हैं, until and unless my action is not harming anybody, whatever because every person is unique, every person has its own। आप जैसे पहले आप अपने को पसंद करें तब बाकी लोग आपको पसंद करेंगे। क्योंकि लोग पसंद क्या करते हैं, क्या चीज पसंद करते हैं, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस। क्योंकि लोगों में क्या नहीं होता है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कुछ नहीं पसंद करते, कॉन्फिडेंस पसंद करते हैं। तो कॉन्फिडेंस अगर तुम हो और तुम हाई हेडेड भी हो तो भी लोग तुम्हारे फैन बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आज शाहरुख खान की बर्थडे, इसलिए हमने आज नई साड़ी पहन ली। ठीक है, ओह थैंक यू। ठीक है, तो शाहरुख खान हमेशा वो बात करता है, एटीट्यूड रखिए, हाई हेडेड रखिए, कोई और ना समझे, खुद को तुम ही समझो किंग खान। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो बिना एटीट्यूड के, बिना शौक के, अगर आपके लग्जरी वाले शौक ही नहीं है तो आप उतना कमाओगे ही नहीं, है ना। तो शौक पालना अच्छी चीज है, और शौक आपको मोटिवेट करेगा कि ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ये कार नहीं ये होनी चाहिए। शौक जरूरी, और डरना नहीं है। पावर को तुम उसको जस्टिफाई करो कि क्या दुनिया बिना पावर के चल सकती, तो पावर बैड कैसे है, पावर तो जरूरी है। पावर सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूरी है। तो पावरलेस इंसान जो है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो पीपुल आर डोंट गो विथ narratives, always challenge your mind that how will I challenge what other person is speaking, and take this exam as a game। क्या गेम, चैलेंज करा करो। ठीक है, सब कुछ हार के इंसान जीतता है, सबसे पहले अपनी ईगो हार लो। ठीक है, कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे अपनी डेवलपमेंट से मतलब। जैसे ये हैं, ये फासिस्ट व्यक्ति हैं, तो ये अपनी क्वेश्चन पूछते रहते हैं क्योंकि इन्हें अपने से मतलब है। तो तुम लोग को क्या वो बोलते हैं, हो जा खुश नसीब, क्या होता है, सेल्फिश, कुछ ऐसा गाना है ना, दुनिया की सुनता है क्यों, वही वाला गाना सुनो। आई एम टेलिंग यू दिस विल बी हेल्पफुल, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फिलहाल लेट अस डू द ट्रेंड एनालिसिस। फाइन, तो PYQ का ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है, हम दो लेवल पे चीजें देखते हैं। फाइन, एक है सुपर स्ट्रक्चर लेवल, व्हाट इज रिटन, एंड देन गो टू द बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज हिडन। ठीक है, तो यू हैव टू find out hidden meanings. They want to see your vision, how much you can see, and don't be mechanical in this paper. This paper is your personality test and your way of looking things. If some statement is given,
Can you build a counter statement? Fine. And are you rational person or not? जो भी एकेडमिक्स में, जैसे पॉल साइंस में या सोशियोलॉजी में डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं, आफ्टर ऑल essay is a application of that methodologies only. So right now, what is the most dominating thing? We call it as policy science. Means what is the purpose of whatever we study? The purpose is we should be able to bring meaningful change, and especially when you are going in government, you are going in administration, you should be normative, you should have values, and the values which are progressive values, the values which are from the perspective, because India is what? India is a welfare state. Fine. Now, in my class, I don't want anybody to prepare anything. Because जब आप कुछ prepare करते हैं तो आप original नहीं होते हैं, और repetition नहीं चाहिए, mass नहीं चाहिए, हर इंसान का एक आंसर, हर इंसान का एक पैटर्न्ड आंसर, जिसको पता नहीं कौन सी पेस्टल अप्रोच है. जो सिस्टम है, जो एक चला ढर्रा चल रहा है ना, उसको ब्रेक करना है. हु इज अ लीडर? वन हु इज मूवर एंड शेकर. ठीक है. वन लीडर्स डेफिनेशन इज डिसरप्टर. लीडर्स डेफिनेशन कम्स फ्रॉम नीत्शे's आइडिया ऑफ सुपरमैन. तो ऐसे सोचो, अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है, यही नहीं करना है, क्योंकि वो ऐसे ही इंसान को देखना चाहते हैं जो वो नहीं कर रहा है. क्योंकि जो कर रहा है वो लीडर है नहीं, वो मास है. सबने वही पैटर्न चालू कर रखा है, तो सबने वो पैटर्न चालू कर रखा है, आपका इसीलिए नहीं होगा. हमेशा जो टॉपर्स के आप देखते हो, जिस टॉपर्स के आपको लगता है इसके आंसर्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है, उसने कुछ नया किया होता है. तो सबसे, जैसे मुझे याद है वो शेट्टी समथिंग, अनुदीप. तो अनुदीप शेट्टी को इतने मार्क्स क्यों मिले? उसने कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दिया, जो समथिंग रिफ्रेशिंग था या कुछ नया था. लेकिन बाकी लोगों ने कुछ नया नहीं किया, उसके फॉलोअर हैं. तो एग्जामिनर सोच रहा है, एग्जामिनर को एलिमिनेट करना है. ही हैज टू एलिमिनेट, he has to find out something different. क्या बोरिंग है, monotony, you have to break the monotony of the examiner, and don't be follower. You should always think that I will start a trend. And social sciences are what? Very subjective. So there can be endless ways. The only thing is, are you able to write relevant things or not? Even in one essay, you can't write importance in science and technology, it's okay. If you can't write how this term or how this phrase is relevant for social issues, okay. Everything is not meant to be relevant for everything. So just be organic. Okay, don't follow a style. You should have no style. That is a style of academics now. Because what is dominating is postmodernism. Postmodernism says destabilize the things. Okay? And don't have any style. Your style is the style. तो ऐसे, क्योंकि हम फिर बहुत ऐसी चीजें सोचते हैं which is of no relevance. And that takes, writing is something very personal, and it can be very phenomenological. Means what you experience, and you can be natural only in what you experience. So what is the latest trend in philosophy?
is what a person experience. So when they are asking philosophical essays, at least you should be aware of the trend in philosophy. So be organic. They are not selecting every person just because he is like any other. Why otherwise, why will there be a personality test? Why the number of personality test is I think 275. ठीक है, तो पर्सनैलिटी मैटर कर रही है. आप क्या यूनिक लेस लाओगे? What value addition you will do in administration? You should know. You should justify that. ठीक है, तो मेरा शुरू से ही even writing anything is whatever I feel like I write. तो दिल से लिखो, दिमाग से नहीं. ठीक है, और दिल से आप वही जब आपका वो एक्सपीरियंस है, फिनोमिनोलॉजी है, आपका ऑब्जर्वेशन. ऐसे का मतलब ये नहीं होता है मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव. ऐसे मीन्स यू आर हैविंग a systematic and deep thinking on any issue. So when you will spread it, how can it be deep? Either you can spread or you can be deep. And don't get yourself distracted from the main topic. More you can go deep is important. Open up that particular topic. ठीक है, तो ऐसे मैकेनिकली ऐसे नहीं लिखो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में उसका इंपॉर्टेंस डाल ही दें और सोच रहे हैं कैसे डाल दें और वो कितना आर्टिफिशियल लग रहा है. तो उससे क्या होता है, फ्लो चला जा रहा है. एंड द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग ऐसे इज रीडिंग न्यूज़पेपर. Reading newspaper is you are preparing for your GS optional as well essay, because newspaper is helping you to build language, to keep updated with current examples, which is expected from UPSC aspirant. And reading newspaper is not easy. So when you read newspaper rather than magazine, you have pressure on your mind. And when you feel that pressure, after that your capacity develops. जब आप लोग मैगजीन पढ़ते हैं तो वो वाला लिंक ही मिस करते हैं जिसमें इवन आई रीड न्यूज़पेपर. एक आर्टिकल में ऐसा नहीं होगा कि आई नो मीनिंग्स ऑफ एवरी टर्म. आई हैव टू सी द डिक्शनरी. I see the dictionary, I see the context, and my knowledge increases. If somebody is giving me ready-made, neither I have seen what was the background of something, तो हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा. हमें इंफॉर्मेशन बहुत हो जाएगी लेकिन हमारा डेवलपमेंट नहीं होता. हम बहुत आगे की प्रोसेस और हम बहुत पीछे की प्रोसेस मिस आउट करते हैं. ठीक है, तो ऐसी चीजों को एनकाउंटर करना which puts pressure on mind is important, because there is no other way I feel our mind can grow. Look for more difficult text, लेकिन आपके लिए it's okay, you read at least हिंदू तो पढ़ो, और पढ़ना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, कोई भी पेपर पढ़ो. सारे लोग तुम लोग से तो बेहतर ही लिख रहे हैं पेपर में, है ना. आई फील लाइक तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन होता ही है. आज हम इतने साल बाद अगर हम नहीं कह सकते कि एक ही रीडिंग में पूरा सारे वर्ड्स हमें पता है, तो ये ओवर द ईयर एक जर्नी है. ठीक है, तो एक तो स्टेटमेंट्स, जैसे पहले डायरेक्ट स्टेटमेंट आ रहे थे, अब फिलॉसफी. व्हाट इज फिलॉसफी? Abstraction. Are people able to see the things in abstraction or not? And are you able to reach to crux or not? So there is behind that abstraction, there will be something concrete in the paper. For example,
instead of directly write an essay on gender justice, they may be giving some statement from some women scholars. तो जेंडर जस्टिस पे अगर कोई बना रहा है, कोई वो रोड साइड कोट लेके नहीं बनाता है, ये कम से कम यूपीएससी की अच्छी चीज है। तो एक नेचुरल है कि वुमेन पे अगर हमें बनाना है तो हु आर प्रोमिनेंट पर्सन्स, उसी में से किसी एक का, क्योंकि यूपीएससी की भी तो एक इज्जत है कि भाई यूपीएससी का पेपर देने के बाद एग्जाम, student should feel given UPSC paper, industry should feel, and we should appreciate. इतना तो सोचते होंगे पेपर बनाते हुए, ये भी तो सोचते होंगे कि स्टेट सर्विस जैसा नहीं, कुछ तो खास करते होंगे। यही रीजन है कि वो एब्स्ट्रैक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ नया नहीं है, इट इज जस्ट क्लोथ्ड इन अ डिफरेंट वे। तो देखोगे तो इश्यूज क्या क्या हैं एसेज के लिए। हम लोगों ने जैसे क्या पैटर्न, ऐसे की बेस्ट चीज क्या है कि तुम सारे सब कुछ तुम्हें प्रिपेयर ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ चॉइस। तो एक दो एरिया अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, आठों ऐसे तो लिखने नहीं है कि ऑप्शनल टाइप। हम तो कह रहे 2 ही टॉपिक प्रिपेयर कर लो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टॉपिक में क्या आप, एक वुमेन है, एक एजुकेशन है, एक साइंस टेक्नोलॉजी है, ऐसे की बेस्ट चीज ये है कि तुम एक दो टॉपिक को बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एक ना एक चॉइस मिल ही जाने वाली है। और ऐसे इज मोस्ट सर्टेन पेपर, सर्टेनिटी है उसमें, फाइन। तो अल्टीमेटली यूपीएससी एग्जाम इज फॉर व्हाट? स्टेट। यू विल बी सर्विंग फॉर स्टेट। स्टेट्स पर्पस इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज अबाउट पॉलिसी मेकिंग। बेस्ट है ना ऐसे के लिए भी, अगर तुम्हें बहुत ऑथेंटिक चीज चाहिए ना तो इंडिया ईयर बुक पढ़ लो, ठीक है। क्या ऐसे में पूछेंगे? साइंस टेक्नोलॉजी, वुमेन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, और सेकंड सेक्शन जो होगा जो और एब्स्ट्रैक्शन वाला होगा, सेक्शन बी जो होगा वो तो कम से कम प्रेडिक्टेबल है और इसी में घूमना है। 2 ही ऐसे लिखने हैं, इसलिए 4 ही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। अब ये अलग अलग है कि who is finding which topic interesting. Okay, so if you I'll also see, and if you find the trend, ये कौन सा ऐसे है? ये यूपीएससी का ऐसे है। यूपीएससी क्या है? पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विसेज। Civil services, you are in administration. Your purpose is, if you will reach to the senior level, formulate policies. Junior level, implement the policies. While implementation, junior level is what? Your learning. So when you are at ground level, you are understanding the challenges, problems, and this is giving you hands-on experience. This experience which you will have in the field is the basis for policy input. और अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं? You want administration to be efficient.
in public service delivery. Who is dependent on public service? Disadvantaged section. ठीक है, तो इनके लिए हमें कैसे आगे ले जाना है? What are the means through which you will advance the cause of disadvantaged section? Obviously, most important thing is development. What type of development? Sustainable and inclusive development. यही एक पैरामीटर है जिसमें पूरा, और वो बस आपको देख रहे हैं कि इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि नहीं. ज्यादा कुछ तुमसे प्रोफेसर फिलोसोफर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तुम लोग प्रिपरेशन ही बहुत स्पेशल का करते हो, है ना, जबकि एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत बेसिक है. लेकिन टोटलिटी में हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं. इसीलिए क्या क्या थ्रस्ट एरियाज हैं? सबसे पहले वुमेन. नॉर्मली वुमेन पे ही आता है, वुमेन पे प्रिपेयर करना है, बिकॉज other vulnerable sections can be there like children etc, but they will become too specific. Okay, so they'll not ask on those areas. But when we deal with women issues, we are dealing with gender, and gender is a major concern in social justice. So do you have that 360-degree view, and how much interest you are going into public service? Means you had any interest to know about the problems for whom you are the facilitator? Does it interest you or not? Fine. So are you inquisitive? Do you want to know that? Now inquisitiveness का भी एक लेवल है कि are you just knowing the government policies, या आप ये भी दिन कंपैरेटिव व्यू है क्या आपके पास, what is happening in some other countries? क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या माइक्रो लेवल initiatives, not just from India, do you know these things? How much interest do you have in this issue? Because gender is a very big concern. Fine. So we have to prepare from micro to macro. फिर हम जब जेंडर की चीजें जानने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं. तो प्रॉब्लम को हम डिग कर रहे हैं. क्यों है प्रॉब्लम? गवर्नेंस. इस प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं. समझते समझते अल्टीमेटली यही समझोगे कि कहीं आइडिया में ही ऐसे कौन से आइडियाज हैं जिससे ये प्रॉब्लम सस्टेन हो रही. तो अपने आप किसी भी चीज की प्रॉब्लम को जानने का मतलब क्या है? यू आर ट्राइंग टू गो टू द फाउंडेशन ऑफ समथिंग. फाउंडेशन ऑफ समथिंग मीन्स एसेंस ऑफ समथिंग, अल्टीमेट कॉज, द फर्स्ट कॉज ऑफ एनीथिंग. ठीक है, तो फर्स्ट कॉज, द वेरी रीजन. अल्टीमेटली आपको फिलॉसफी में ही जाना है. तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने कितना इंटरेस्ट लेके इसलिए ऐसे के टॉपिक में कुछ अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जहां पे आपका यू रियली फील लाइक, आपको वुमेन वाला लगता है तो आप कितना मतलब परस्यू करो. हम तो कह रहे सारे लोग कोई ब्लॉग बना लो, कुछ कुछ लिखा करो. ठीक है, यू शुड हैव अ हैबिट. Ability to write means ability to think.
Okay, it cannot come, it has to be your daily habit. So at least if we cannot do much, we can do little. So just start writing your diary, start just writing one paragraph on anything. Means you need to develop language and ability to express. तो मेरे अनुसार अगर आप सीरियस हैं, आपके अंदर चस्का है और आप जानना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं कि यू कैन राइट लेट्स से ओनली 7 लाइन्स ऑन समथिंग एंड देन यू स्लीप. ओके, तो 7 हम वी आर राइटिंग समथिंग, सो मेनी सेल्स, नर्व्स, ऑर्गन्स, एवरीवन इज ये सब हमारे एक्टिव मोड में है. तो पहले इसी से देख लो आपको कितना चस्का है कि अब लास्ट हो गया, सब पढ़ लिया, अब सोना है. सोने से पहले क्या आपके पास 3 मिनट्स हैं या 7 लाइन है, 7 मिनट्स हैं? 7 नहीं लगते तो 2 हैं, 2 भी नहीं लगते तो 1 है, वो भी नहीं है तो आधा है क्या? आप क्या दे रहे हो उसको? और ये लिखना 1 डे में नहीं आएगा. ऊपर से तुम लोग का जो लेवल है लैंग्वेज का, विच समटाइम्स आई सी इन द, एक स्टूडेंट कहना नहीं चाहिए, टेस्ट में क्वेश्चन था व्हाट आर क्लासिक्स, उसने आंसर लिखा है प्लेटो एंड एरिस्टोटल आर क्लासिक्स. ठीक है, अब इसके बाद और कुछ नहीं लिखा है और पता नहीं पूरा पेपर भी लिख दिया, बिना कैसे पूरा लिख दिया. वो इंसान 3 घंटे तक ये लिख कैसे पाया? ये भी एक क्वालिटी है. ठीक है, वो ऐसी कॉपीज हम कुछ बचा के रखते हैं. ठीक है, वो दिखा देंगे वो कॉपीज. ठीक है, तो कैसे लिख पाया वो इंसान, वो भी एक क्वालिटी है. फाइन, तो वही है कि पहले देखो, यू आर गोइंग टू लर्न ऐसे. सोने से पहले रजाई ओढ़ने के बाद एकदम रजाई हटानी है और 2 लाइन लिखनी है about anything, and just see, can I express it better? Fine, just you had a fight with someone, just write that. Think why you had a fight. Is the situation could have been avoided, or fight was very justified, whatever. But what is in your mind? Mind में so many ideas are at the same time. The problem is structuring those ideas, and mind is in disorder. Reality is in disorder. The challenge is to make order out of chaos. That is why writing is difficult, because you are creating order out of chaos. That's why it is not easy. तो लिखना आसान नहीं होता है. बड़े बड़े राइटर 1000 पेज फाड़ते हैं तब कुछ लिख पाते हैं. ठीक है, तो आसान क्यों नहीं है? क्योंकि दिमाग में एक साथ आपके पास इतना स्टूडेंट्स कम, वी हैव सो मच ऑफ कंटेंट, what to write, what not to write, that is chaos, and you are expected to build order out of chaos. Fine, तो यही तो दिक्कत है, because what to leave, how to put things in a structure. Now why should we put things in a structure? 2 things. First of all, we cannot understand anything if it is not in a structure. And somebody else reading my piece of writing will not understand if I will not put things in a structure. So structure is important. Why flow is missing? Because structure is missing. Okay, so structured thinking will not come with some classes here. I can only give my insights, but you have to develop your own insights. हमारा आपका combination में I can only be your guide. तो
अगर आप ऐसे में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आंसर राइटिंग, इफ यू वांट टू लर्न आंसर राइटिंग, जस्ट सी, इसी से पता चल जाएगा कि पावर का चस्का कितना है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ठीक है, तो ये सब अपने को टेस्ट करते रहो, वरना नॉलेज के लिए पढ़ो, अच्छा टाइम गुजार के दिल्ली से चले जाओ, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब गोल क्लियर होना चाहिए। हम लोग तो बस दिल्ली इसी लिस्ट से आए थे कि भाई घर से थोड़ी देर मतलब हमारा गोल क्लियर था। तुम्हारा गोल क्लियर है कि नहीं वो तुम जानो। ठीक है, गोल क्लियर होना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए ये पहले सिंपल आ रहा है, फिर उसके और डीप में जा रहे हैं, फिर और डीप में जा रहे हैं। अब इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, नाउ दे आर इन एब्स्ट्रैक्शन। तो हाउ शुड यू प्रिपेयर, हाउ शुड यू अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम? आप कोई इंटेलेक्चुअल तो है नहीं, या आप कोई ओरिजिनल कुछ नया तो कहेंगे नहीं जो लोगों ने नहीं कहा है। तो उस फील्ड में द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, यू शुड नो who are the prominent persons who are recognized, because ultimately the solution is also in the mind. And so intellectuals who are recognized as authority in certain field, so suppose you choose education, then there are scholars in education. This, if you will pursue this, any person interested in any issue will automatically reach to Simone de Beauvoir, will reach to other scholars on this issue. तो हमारा जो कंटेंट होगा वो कैसा होगा? I will introduce you कि these are basic minimum ideas you should know, basic minimum personalities you should know. Okay, because we are trying to find out the cause behind a social problem. Next, when you have to write essay, then you also need, you can't be only, even in philosophical essay, you cannot be only philosophical. If something is in abstract form, you have to show it in concrete form. Abstraction has to become concrete, and anything given in concrete to be taken to the level of abstraction. So section A questions are abstraction, you give concrete form, and section B questions are less abstract, you reach to abstract form. तो सेक्शन ए और सेक्शन बी को ही अलग अलग क्यों किया है? 8 के क्वेश्चन लिख के क्यों नहीं कर दिया? Why not 8 questions together? They want 2 answers. Why not 8 questions together? Have you ever thought? And what is the underlying pattern in section A and section B? Find out underlying pattern. Find out purpose. अगर तुमने उनकी फ्रीक्वेंसी मैच की कि पर्पस क्या है और तुम इस बात को समझते हो, वरना तुम लोगों ने, डिड यू एवर आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई दे हैव मेड 2 सेक्शंस? क्यों नहीं सोचा? यही तो चीजें हैं कि ये क्यों नहीं सोचा कि 8 पे 8 दे देते, सेक्शन बना के क्या होना है? क्या कन्वीनियंस? वो तो आप इंटरप्रेट करिए। ये भी हो सकता है कि भाई एक ऐसे को 2 लोग चेक कर रहे हो, लेकिन ये सब लॉजिकल नहीं। ये तुम्हारी माइंड की कैपेसिटी की टेस्टिंग है कि क्या फैक्चुअल को एब्स्ट्रैक्शन में ले जा पाते हो और क्या एब्स्ट्रैक्शन को फैक्चुअल तक ला पाते हो। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन में पैटर्न ढूंढिए
अंडरलाइंग पैटर्न, सेक्शन ए के क्वेश्चन में अंडरलाइंग पैटर्न ढूंढिए, ये नहीं कि पेस्टल अप्रोच ढूंढ के चले आए। अपना माइंड लगाना इंपॉर्टेंट है, और आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपने उसको कैसे देखा है उन सेक्शंस को। ओके और कुछ ना कुछ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन गिविंग सम और द अदर मीनिंग। इन द नेक्स्ट डे मे बी यू कैन क्वेश्चन योर ओन मीनिंग, लेकिन मीनिंग देते रहो चीजों को, चीजों का पर्पस समझते रहो। एवरीथिंग इज बीइंग डन विद अ पर्पस, because what Max Weber says, bureaucracy is a organization which is based on rational principles. It has a goal orientation. There is a goal. There is a systematic way of doing things. It is based on rational norms. वो सब expected है। तो आपको हम क्या, आपका टाइम किस में जा रहा है? आपका टाइम जा रहा है, first of all, you do not know who are the relevant people I should be taking care of them. So some may know, some may not know. So at least this much minimum scholars you should know and their ideas. Plus data. On any, in bureaucracy, data has lot of importance because you have to talk on facts. Okay, data tells many things about the reality. So essay on social themes should have data. So often you may find it is cumbersome because you are engaged in some other important things. We will provide you different data on the actual state of affairs and other data. So data, source of data on these issues. So first of all, it is always, you can look for international bodies like United Nations. So up from where, what is your mindset? You are sourcing the data from where? Obviously, if I am writing on women, so I should look about UN women, because I am not an activist. I have to be according to the governments. So governments in different countries, their basic data is coming from United Nations, the authentic data. उसको ही हमको मानना है, हमें कोई स्पेशल सनसनी रिपोर्ट नहीं लिखनी, क्योंकि सनसनी रिपोर्ट का कोई मतलब थोड़ी है, कोई उसका कोई ऑथेंटिक है नहीं। तो we will give you data, we will give you government data, any and then policy, उसको कलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। Important bodies, important activists, somebody who has done something, again social cause hai. It is also important to keep in sight, because if constitution is a guiding line and our constitution is organic, then judicial interpretations, what has been the contribution of judiciary into it, what is the contribution of parliament into it, civil society level, where the action, where the things are missing. Fine. So that basic data will be enough. You don't have to look for content, because you have to be practical, that you don't have time. Even if you can collect better data, it's not important now. You have to have just that basic structural data, important quotes, and just to see why should you have quotes? What is the importance of quotes? It's not just you are giving it
an appealing thing. It is showing you have an interest and you are a person who actually want his work should look nice. You are taking efforts to make it nice. Okay, so make it nice, make it good. So you as an officer, you will be a person who will put efforts even to make a nice report for a minister. You know, you have an interest in presenting the things. It's not that you present the things, think on each and everything. This, why, what is the rationale? So it is only showing how passionate a person is. Fine, his way, and it should be reflection of his style. Okay, you had a question. Shubhanshu's can other questions खोल देंगे. Yeah. वुमेन टॉपिक पे, तो वुमेन का प्रॉब्लम किसी और कंट्री में कुछ और होगा, उसी तरह से जस्टिस का प्रॉब्लम इंडिया में कुछ और है, उसको अलग अलग तरीके से वो मेरा जो लेक्चर है ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर देगा आपको. आप बस ये समझो कि इससे ज्यादा तुम प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ना तो तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस है ना समय. ठीक है, क्योंकि तुमको 10 चीजें और समझनी. तो बस इसी में खुद ही हमको, मतलब खुद हमको ये भी पता होना चाहिए वेयर शुड आई स्टॉप. अदर कंट्रीज, आपको क्या दिखाना है. व्हेन यू नो समथिंग फ्रॉम अदर कंट्री, अल्टीमेटली यू शुड नो व्हाट डू यू वांट टू शो. क्या दिखाना चाहते हैं. You just want, you are a inquisitive person. ठीक है, आपको अपने ट्रेट्स दिखाने हैं ऐसे में कि आप इंटरेस्ट लेते हैं आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग चाहिए जो ये जाने कि आसपास क्या हो रहा है. ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बुक वर्म्स हैं. जो बुक वर्म्स हैं उनका रोल एकेडमिक्स में है. वो एकेडमिक्स ऑल्सो इज नॉट बुकिश रिसर्च. तो इट इज सिंपली शोइंग, और these things are not, you should, it's not that you should do because you have to write essay and give exam, but this is going to bring awareness, is empowerment. It brings lot of change in your own confidence. And if, और इसलिए बेस्ट सोर्स जो है वो न्यूज़पेपर ही है. ठीक है, तो न्यूज़पेपर से पढ़िए केस स्टडीज, एथिक्स की केस स्टडीज, सब कुछ तो न्यूज़पेपर में है. न्यूज़पेपर ही एक यूपीएससी के स्टूडेंट की टेक्स्ट बुक है. फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू एथिक्स टू एनवायरनमेंट टू एवरीथिंग, उसको सब यही पढ़ना है. तो जितना आप, इसलिए ये नहीं, मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज द नीड. दिस टॉपिक, दिस स्टेटमेंट इज वेरी रेलिवेंट इन इकोनॉमिक्स, सो व्हाट. This statement is very relevant in social policy, so what. State's policy cannot be segregated. That is not a mark of your intelligence. This problem is existing, this problem has been done. तो इसके पीछे नहीं पड़ो कि हर चीज की जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बता दें. ठीक है, तो जेंडर जस्टिस का जोग्राफिकल में रेलेवेंस नहीं, तो कई लोगों को लगता है कि मैं ऐसे में वो नहीं लिख पाया. इस टॉपिक का याते बच्चे बताते हैं कि इस टॉपिक का जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा था. कई लोगों ने ऐसे समझा दिया है कि ऐसे पेपर मतलब जीएस का सार है, और उसका मतलब ये होता है कि जब सारा जीएस कर लो फिर ये करो. ये नहीं है, ये ability to think. Essay paper is also test of your patience. It is test, can you think on one topic. 2 टॉपिक में इतना टाइम गुजार सकते हो, ये तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन का भी टेस्ट है. मतलब कुछ भी लोगों ने बता रखा है. ठीक है, तो कई बच्चे जो बिना जीएस खत्म किए भी लिख सकते हैं, लेकिन उनको लगता है पहले जीएस खत्म हो जाए. कई तो और हैं, वो ये भी सोचते पहले ऑप्शनल खत्म हो जाए. ठीक है, ये ऑप्शनल
GS, essay. Underlying pattern. क्या है underlying pattern? All the papers have same. Critical thinking, ability to deconstruct. वो चाहे यहां शुरू करो चाहे वहां शुरू करो, आज शुरू करो कल शुरू करो. UPSC, few things. You should be a lively person, because you are going to encounter problems only. You are going to encounter pressure only. जॉब में प्रेशर है और प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं है, ये तो पब्लिक में ही बस अच्छा है. तो वहां के लिए आपके अंदर अमोर फाटी है कि नहीं, डू यू लव दैट और नॉट, तो वो लिविंग फोर्स आपको चाहिए. ठीक है, तो कितने आप लाइवली हैं, कितना आप इंटरेस्ट लेते हैं. ओके, तो अंडरलाइंग पैटर्न्स हमेशा, आई गो ऑन अंडरलाइंग पैटर्न्स. तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है. पहले मेरा तरीका ऐसे है कि आई विल स्टार्ट अ टॉपिक विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, सारे जैसे वुमेन के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. स्टेटमेंट्स कुछ भी हो, ये समझ में आपको आ जाएगा ऐसे का बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होता है. ठीक है, क्योंकि क्रक्स एक ही है, चाहे इधर से हाथ ये कान पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, तो कोई नहीं, सबसे आसान चीज है ऐसे. ठीक है, क्रक्स यही है. तो दिस इज हाउ आई स्टार्ट विथ, हाँ मतलब एक मिनट, हम नॉर्मली PYQ की ही एनालिसिस से एक पर्टिकुलर इशू के ट्रेंड के ऊपर आ जाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन होगा और उसके साथ जो कंटेंट है, चाहे वो PPT हो या जो भी है, उसको समझा दिया जाएगा. ये कंटेंट आपका फॉडर मटेरियल है. इस कंटेंट को तुम ले आओ. तुम्हें आई डोंट इनकरेज कि आप कोई डेटा याद करें. ठीक है, आप आइडियल ऐसे लिखिए और कंटेंट के साथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थिंकिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. ओके, उसके बाद टेस्ट का पैटर्न है. तो जब टेस्ट में उसी टॉपिक के 2 क्वेश्चन होंगे तो अब वो कंसोलिडेट हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है. ठीक है, तो कौन से टॉपिक्स हमने सोचे कि हैं. फिर जब तुम्हारी टेस्ट कॉपी मिल गई, उसके बाद तुम्हें भगवान सर या और जो भी टीचर्स हैं उनके साथ बैठना है. अगर तुम्हें लगता है कि इनके फीडबैक से हम सेटिस्फाइड हैं तो सही है, लेकिन कभी सेटिस्फाइड रहना नहीं है. ठीक है, तो क्या करना है, फिर हमारे पास आना है, लेकिन हमारे पास इनके पास के बाद आना है, क्योंकि हमने वैसे ही इतना पढ़ा दिया है. ठीक है, और हमारे पढ़ाने के बाद जब कुछ नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम आके क्या करना है. ठीक है, तो लेकिन ठीक है, क्रिटिकल सबके और सबको रहना, सबके लिए रहना अच्छी बात होती है. तो आप इनके साथ जितना आप पर्सनल इंटरेक्शन में सीखेंगे, एंड many students hesitate as if they feel marks here are going to be reflected in their final mark sheet. कई स्टूडेंट तो टीचर के ही को ही इम्प्रेस करना चाहते हैं कि मतलब आते ही नहीं, मेंटर बेचारा खाली बैठा रहता है. ठीक है, तो आते क्यों नहीं हो तुम, उनको क्या इम्प्रेस, तुमको जितनी गलती कोई मेंटर के सामने जितना बेवकूफ दिखे और अच्छी बात है. आप गलती करोगे, फिर उसको कोई टोकेगा, तब आप सीखोगे. और शुरुआत में सब बहुत आइडियलिस्टिक होके प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन लंबे उसमें कौन जा पाता है, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो आते तो सब लोग हैं, लेकिन वो ड्राइव होती नहीं है सब में. स्टार्ट तो बहुत कुछ होता है, मार्केट में भी होता है, अन एकेडमी है ना,
बाइजू, अरे होता है, सब सोचते हैं, भला ही सोचते हैं, लेकिन सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं? सस्टेन करने की औकात नहीं है सबकी, क्योंकि आसान नहीं है ये सब चीजें। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, यूपीएससी पे पढ़ना पढ़ाना और इंजीनियरिंग और उसमें बहुत फर्क है, ये बहुत अलग है ना। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, ह्यूमैनिटीज है। तो जैसे स्टूडेंट्स भी आते हैं चले जाते हैं, ऐसे टीचर भी आते हैं चले जाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट भी आते हैं चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप आए, एक्सपीरियंस लिया, लाइफ है, लीजिए। लेकिन खड़े रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, खड़ा हर कोई नहीं रह पाता है, तो खड़े रहना यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। क्या चीज आपको खड़ा रख रही है? ठीक है, तो वो खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत के बिना कुछ नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव करेज। आर यू दैट पर्सन हु लाइक्स टू, you should have goals. You have a goal, and you have, all successful students, they have been self motivated. ठीक है, then we give the direction and the force multiplies. तो आपको अंदर अंदर से इच्छा है। स्टार्ट सब लोग होते हैं, पहले डिस्कशन में सब आते हैं, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन देख लेंगे, फिर धीरे धीरे एग्जाम के बाद देख लेंगे, फिर धीरे धीरे कोर्स का टर्म खत्म हो जाता है। पढ़ना नहीं है, लेकिन मेरा एक्सटेंड कर दीजिए, मेरा एक्सटेंड कर, पढ़ना नहीं है। जिसको पढ़ना है ना, वो उसी टाइम में कर लेता है। जो चीज आपने छोड़ दी वो दोबारा हो नहीं सकती। आज का अखबार नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं हो सकता, वो गया। तो पता नहीं हम लोग को क्यों इंप्रेस करना है, 6 महीना और बढ़ा दो। जो इंसान साल भर में नहीं कर पाया, वो अगले 6 महीने में वो या तो खुद को समझा रहा है, या हमें समझा रहा है, या घर में माँ बाप को समझा रहा है, कोशिश पूरी कर रहा है। ठीक है, उसने कहीं सुना होगा कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये हार तो बहुत कारणों से होती ना, केवल कोशिश ही से थोड़ी कुछ हो जाता है ना। तो पहले सोचो, हम एक्सटेंड करने ही क्यों आए? अब एक बार जब कर लिया तो कर लिया ना, करना है। अपने को धोखा, मतलब धोखा धोखा धोखा, फेकनेस इज अ बिग प्रॉब्लम। मत दो धोखा। ठीक है, तो इन फिलहाल इतने इशू में एक वुमेन इशू बहुत अच्छे से बिल्कुल सुपर बना लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आएगा ही यूपीएससी में। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो चाहे, ठीक है, ये हर पेपर में एक क्वेश्चन तो डालेंगे। जिस साल ना डालें तब दिक्कत। नेक्स्ट है एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन state is what? A pedagogic institution. So most important area in education, most important in public is education. You should prepare for education. Next is development, themes of development. So many of previous year questions, they are based on ecofeminism, they are based on inclusive growth and these type of things. Fine. So development question is always linked to environment question. इसमें से आपको जो पसंद है वो फील्ड पैशनेटली पढ़ लो। ठीक है, एनवायरमेंट पे जरूर आता है, शायद पता नहीं, मतलब साइंस वाले बच्चों को देखते हुए या कुछ तो आता ही है एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट वैसे भी ट्रेंडिंग है ना। और साइंस, टेक्नोलॉजी, जैसे एआई। अभी एआई एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है। ठीक है, इस पे आपकी क्या सोच है? तो इसको प्रिपेयर करना ही है। ये तो जीएस के लिए भी प्रिपेयर करना है, कहीं भी ये कंटेंट हो सकता है पॉल साइंस में भी यूज हो जाए, आपके ऑप्शनल में भी यूज हो जाए। तो ये 4 बेसिक इश्यूज हैं जो
हम लोग प्रिपेयर कराएंगे। पॉलिटी गवर्नेंस है, पहले आता था, नहीं आता। अब इसमें अगर आप चाहेंगे और आपको दिक्कत नहीं है तो जैसे प्रीवियस जो लेक्चर्स लिए उनका भी एक्सेस दिया जा सकता है, लेकिन कई लोग परेशान हो जाते हैं तो देख कर ही ले लो कितने वीडियोस चाहिए आपको। लेकिन जितना सुनोगे उतना आपके पास, यू नीड आइडियाज, एक्चुअली लॉट ऑफ आइडियाज। तो आइडिया से ये बनेगा। तो पहले फेज में ये चीजें करनी है और प्रीलिम से पहले इस एरिया को खत्म कर लेना है, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिलोसफिकल एरियाज। मेरा एक स्टाइल है कि हम चाहते जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनका पब्लिक पॉलिसी एंगल आप दें, है ना, कि उसको पब्लिक पॉलिसी में कहना है। तो फिलोसफिकल टॉपिक्स को प्राइमरीली दो थीम्स में हम रख सकते हैं। एक जो है वो कुछ मॉरल टीचिंग से रिलेटेड है, one set is based on certain values. Here your ethics also helps a lot. Fine, they can have an essay on honesty, they can have essay on courage. So if you will prepare your ethics paper properly, you will get maximum areas. Okay, and the third is, which you can say, core philosophical questions. Core philosophical questions are actually metaphysical questions. Metaphysical questions is related to conception of reality, purpose of life, eternal truth, etc. तो ये हम लोग सेकेंड फेज में करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कर किसी से भी सकते हैं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें करिए, हमको तो सबसे ज्यादा इसी में इंटरेस्ट है। ठीक है, और अगर आपको बच्चों वाले करने तो उससे भी करिए। मेन चीज है, जैसे एग्जाम से पहले हम जो सुनते हैं ना वो फिर फ्रेश रहता है। ओके, तो अगर मतलब यू कैन टेल आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक्स, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक तो यही। ठीक है, ये सब तो वैसे ये सब फिलॉसफी में बच्चों वाली चीजें हैं, मॉरल टीचिंग, करेज, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन ये अगर ये आ गया क्वेश्चन लाइक रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, तो जितने भी नोटेड फिलोसफर्स हैं उनके डिफाइनिंग स्टेटमेंट्स, आई थिंक देयरफॉर आई एम, एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस। ठीक है, अगर उससे कर लिया, लेकिन फिलॉसफी नहीं कर रहे हैं हम, हमको उसको प्रैक्टिकल फॉर्म देना है, पॉलिसी ओरिएंटेड फॉर्म देना है। सपोज ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जिस्टेंस इज, मतलब इससे ज्यादा क्या प्रिपेयर कर सकते हो, इतना बस प्रिपेयर करो। यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस, इसका पब्लिक पॉलिसी में आप कैसे लेके आएंगे, क्या क्या लेके आएंगे, कहां तक आपका इमेजिनेशन कहां तक स्ट्रेच कर रहा है। ओके, तो अभी जो लोग नहीं थे, जो थे, हमने एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया गांधी पे। ठीक है, तो गांधी का जो क्वेश्चन है वो कहां पे वो उन्होंने लेके गया कि इंडिविजुअलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस। In public policy, we can relate it to direct democracy and its significance. Is that clear? So this is how we will proceed. Next is, if you want, I do these questions first, we can do these questions. If and those who don't have political science or philosophy, or matlab sociology, maybe you cover so much.
सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉल साइंस तो बहुत ओवरलैपिंग है. अगर आपके ऑप्शनल इज ओनली साइंस एंड यू फेस प्रॉब्लम, देन you contact us, we'll help you out on individual basis. Fine. तो जरा क्वेश्चन दिखा दो and then you जैसा दिखा दो थोड़ा. Since in the team भगवान sir will be there and he will be your main mentor. आपकी जो आपको 1-to-1 करना है वो इनके साथ ज्यादा करना है. तो he will discuss few things जो नहीं, इन्होंने बनाया है ना कुछ तो, इन्होंने विजय जी ने कॉपी ऑफ इंटेंसिव, ये तो नहीं है फर्स्ट वाला. फिलॉसफी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम, तो दिस इज व्हाट इज आवर स्ट्रॉन्ग एरिया. ठीक है. बाकी सारे लोग जितने हैं ना वो अपने लेवल पे पहुंचने वाले नहीं. ठीक है, नहीं पहुंच सकते, ये तो हम बता दें. ठीक है. अब ये सारे थीम्स आ रहे हैं. फिलोसफिकल एसेज 41% बढ़ते चले जा रहे हैं. सोसाइटी, सोशल इश्यूज, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, मैं चाहूंगी इस एरिया में आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि सब लोग नहीं लिखते हैं और जो साइंस वाले लिखते हैं वो फिलोसफिकली नहीं लिखते हैं. तो जब आप टेक्नोलॉजी लिखते हो, टेक्नोलॉजी पे लिखने वाले फिलोसफर्स हैं क्रिटिकल स्कूल के फिलोसफर्स, एडोर्नो, हैबरमास, इनके आइडियाज जब लिखोगे तब जा करके एग्जामिनर को मजा आएगा पढ़ने में, है ना. तो मेरी कोई चॉइस कहे तो हम वुमेन भी ज्यादा मतलब वुमेन उनको ज्यादा रिकमेंड करेंगे जिनको लिखने में. ठीक है. बट ये चीजें हैं. तो देर इज लॉट फिलोसफी ड्रॉज फ्रॉम साइंस. तो इसमें आप थोड़ा यूनिकनेस ला सकते हैं. ये आंसर कम लोग लिखेंगे. ओके. इन्वायरमेंट भी बहुत लोग लिख पाएंगे. जो बाकी नहीं लिख पाएंगे वो एरिया को अपना स्पेशलिटी बनाना है. ठीक है. अब इकोनॉमी, डेवलपमेंट ज्यादा ये सब गवर्नेंस वर्नेंस पहले आते थे, अब नहीं आते हैं. तो इस पे काफी काम किया गया, आप इसको ऐसे देख सकते हैं. नेक्स्ट है नॉर्मली ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस साल के, ये हम लोगों ने करे और ऐसे आए भी. फॉर एग्जाम्पल, इट इज द स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट दैट मूव्स द अर्थ. और इन्वायरमेंट पे 2 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिए. इस साल नहीं आया इन्वायरमेंट में, लेकिन यहाँ से लास्ट ईयर स्टार्ट किया. एंड आइडियल्स ऑफ वुमेन हेड, फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट फॉर वुमेन. उसके बाद आप रियलाइज करो, चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये आंसर लिखो, बाहर से अलग होता है लेकिन जो कोर बॉडी है वो सेम रहती है. ठीक है. द ट्रेजेडी ऑफ द वर्ल्ड इज डाइवोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम. इस साल का इनका क्वेश्चन क्या था? थॉट फाइंड्स अ वर्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो. तो इस तरीके के टॉपिक, more ingenious our apparatus, the coarser and more unskillful our senses. This question I gave for education. ठीक है. तो more ingenious our apparatus, the more unskillful, मतलब more creative education we will promote. ये थोड़े जेनेरिक क्वेश्चंस हैं साइंस पे लिखने के, और जब हम इसका सोल्यूशन देंगे तभी यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज टू बिल्ड आंसर्स ऑन साइंस. साइंस एट द हार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव, और साइंस इज व्हाट वी नो, फिलॉसफी इज व्हाट वी डू नॉट नो. ये अपनी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है. ट्रूथ इज रेयरली प्योर एंड नेवर सिंपल. और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है. ट्रूथ नोज नो कलर. ठीक है. तो ये सब टेस्ट सीरीज, क्योंकि ट्रुथ के ऊपर आपको, ये मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, ट्रुथ, रियलिटी, इसके बारे में. और जो पॉल साइंस के लोग हैं, अगर ये
पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब चीजों को अगर ध्यान से सुनोगे तो यू विल हैव लॉट टू राइट. ये I think some of you were there. I think brilliant things happen in calm mind. And the question asked was, muddy water is best cleared by leaving it alone. Okay. Then ये सारा है जैसे ontological metaphysical issues पर, फिर ये value system पर, gratitude, ये teaching based. One, gratitude is not only the greatest of all virtues. तो पिछले बार हमने gratitude पे डिस्कस किया. इसमें आया ही है, contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. One who wishes to fight must first count the war. ये इसलिए किया गया था, मैंने इसलिए बताया कि वॉर चल रही है गाजा में, तो दे वांट टू नो ऑल दिस थिंग. तो वॉर की अपनी फिलॉसफीज हैं, जस्ट वॉर ये, तो समथिंग ऑन वॉर आना चाहिए. तो यू शुड हैव सम मटेरियल. The supreme art of war is to subdue the enemy. So one who wishes to fight must first count the cost. शायद ये भी सुनजू का ही स्टेटमेंट है, और ये तो सुनजू का है ही. तो इतना समझ थी कि वॉर पे आएगा. अब वॉर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो एक कॉमन सेंस है, जिसको क्वेश्चन देखना है उसको सुनजू की बुक देखेगा, वो आर्ट ऑफ वॉर. तो उसी से मतलब मैच करो, एग्जामिनर के दिमाग में घुसो. ठीक है. Sometimes it is better to be kind than to be right. Yeah, he who seeks revenge digs two graves. So best lessons are learned through bitter experiences. यही तो experience है. Don't seek revenge. Okay. Then old, चूंकि वुमेन एजुकेशन ये सब पे हम करा चुके थे, तो इसलिए हमने कहा एक ओल्ड पे लिखते हैं, हालांकि ओल्ड एज पे आया नहीं. डू नॉट ग्रो ओल्ड नो मैटर हाउ यू लिव. ठीक है. फिर ये तो आता है, ये सब कोर फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हैं. वन डज नॉट स्टेप्स ट्वाइस इन द सेम वाटर, हेराक्लाइटस. ठीक है. तो इट इज बेटर टू सी लाइफ एज अ जर्नी, not as a destination. Means nothing is final, nothing is conclusive. Okay. So these are some details Bhagwan sir will tell little bit. Anything you want to ask from me? Ready to tolerate me? Huh? Okay. Yeah. आई फील ना, मेरा स्पेशलिटी है ना उस फील्ड में. मतलब फिलोसॉफिकल एसेस क्या होते हैं, एक तो हमें क्यों इजियर लगते हैं, क्योंकि हमारा फील्ड ही है वो, है ना. उसमें हम सबसे कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उसमें कुछ प्रिपरेशन एज अ टीचर मुझे नहीं करना है. वुमेन में डेटा चेंज होते रहते हैं, तो डेटा कलेक्शन करना होता है. ठीक है. दूसरा ये कि मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मेरा नेचर है, आई लाइक दैट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हमें ऐसे लगता है इसलिए हमको लग रहा है. एंड यू डोंट नीड स्पेशल प्रिपरेशन. फॉर वुमेन दे एक्सपेक्ट डेटा, फॉर एनवायरमेंट दे एक्सपेक्ट डेटा, दे एक्सपेक्ट यू शुड नो पॉलिसी, बट फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, दैट बर्डन इज नॉट देयर. वो इसलिए ऐसा है. मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा हो गया कि फिलोसॉफिकल मिल गया. मतलब फिलोसॉफिकल इधर मिल गया. 2012 के बाद यूपीएससी का पैटर्न ही अच्छा हो गया. ठीक है. तो 2012-13 के बाद ही पॉल साइंस वालों का बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जो पेपर बनाया गया. एंड इन टाइम टू कम आई फील maybe they separate foreign services, है ना. हो सकता है वो कर दें, तो उसमें भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा. जैसे अभी इन्होंने वो क्या बनाया है, जो अनसक्सेसफुल हैं उनका भी एक
रिपोजिटरी बनाई है, नॉर्मली नीड किस फील्ड में अराइज होगी? पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, रिसर्च। इकोनॉमिक्स की जो रिसर्च है वो यूपीएससी स्टूडेंट से वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी टेक्निकल थिंग। इकोनॉमिक्स की रिसर्च यूपीएससी स्टूडेंट नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स की रिसर्च तो वही कर सकता है जिसने इकोनॉमिक्स में ही स्पेशलाइजेशन लिया हो। सोशियोलॉजी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ज्योग्राफी, ये सब आप उस सब्जेक्ट में एमए हो, क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो इस पूल से जो लोग यूज किए जाएंगे उसमें पॉल साइंस वाला का ज्यादा अच्छा स्कोप है। यस भगवान सर, यू कम। अब भगवान ही बचाएंगे मैम से, ठीक है, इसीलिए हमने भगवान सर रखे हैं। ही इज द होप अगेंस्ट होप, है ना? बिकॉज यू मे फाइंड माई टॉक्स वेग एंड एब्स्ट्रैक्ट, बट you need somebody to complement and talk those things which students understand, because maybe what I talk students may not understand, right? So Bhagwan sir is here, right? Bhagwan sir is otherwise a ethics faculty and internal security is master of many things. So earlier he had huge experience in building our prelims test series. He was the main person. Thank you so much, ma'am. As you can give your introduction as the main. Thank you so much. Mentor. So, hello everyone. Now let's discuss certain other aspects of essay. Now, ma'am has beautifully concluded various nuances of essays, but let's summarize those other things also. We'll be discussing significance of essay. अभी हम लोग कुछ agenda लेके चल रहे हैं. Now we'll be discussing significance of this particular paper. We'll be discussing slightly about syllabus also, what UPSC expects from all of us, and what is the purpose of this paper, and then we'll be discussing about how to write good essays. Now, before I start, as ma'am said, that is there is a trend, that is earlier they were asking questions from polity, governance, issue based essays were being asked. Now this trend is changing toward philosophical essays. For example, there is always one essay on the topic of attitude change, ethics unit number 2. आपके अभिवृत्ति में परिवर्तन, नजरिए में परिवर्तन, कि आप किसी सिचुएशन में हो and now if you change your outlook toward anything, then your circumstances will be seen. For example, अभी ये शोर हो रहा है, कुछ लोगों के लिए शोर लग रहा है, किसी ने परेशान कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, किसी के लिए शोर हो सकता है, किसी के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नजरिए में परिवर्तन, एटीट्यूड है कि नहीं? दरवाजे में कोई कंटिन्यूअसली नॉक कर रहा है, किसी को लग सकता है शोर, लग सकता है कि नहीं? एंड समबडी में माइट फील दैट इज देयर इज अ ample of opportunity coming, and that is how UPSC also asks those type of aspects कि एक particular theme that is being pertinent and it is normally being asked. We'll be discussing all of those aspects also, but there is an increasing trend, that is a trend has been changing, and now this is a established trend कि most of these questions, multiple of those questions are from the philosophical perspective. Is that clear? सभी को ये clear हुआ है कि the trend is being changing from issue based towards philosophical essays. First thing is clear. Next is with respect to, for example, अब ये पेपर जो होने वाला है, this will be your first paper, right? कि 9 से 12 के बजे के बीच में, from 9 AM to 12 PM, that is 12 noon, you'll be having this essay paper. First paper will be your essay, और उस दिन second half पे कोई पेपर नहीं होता है कि नहीं? Basic nuance कि on the day of the examination, the first paper you'll be giving your essay.
तो उसके कुछ 2-3 दिन पहले you'll be doing lot of those brainstorming and all. You have prepared multiple of those keynotes. You'll be revising, going through all of those aspects. तो उस चीज के लिए, उस दी डे के लिए प्रिपरेशन करने के लिए we should be doing all of those things right now. मतलब अब यहां से जो चीजें शुरू होंगी, we'll be preparing all of those aspects for that the day, and the next particular papers GS1, GS2, GS3, GS4, and after a week we'll be having your optional paper. This is how that schedule will be. And as ma'am already showed you, that is there have been multiple of those hit ratio. अगर आप देखेंगे कि जो मैम ने जो डिस्कस किया है, बहुत सारे एसेज जो डिस्कस किए हैं, उनके जो आइडियाज हैं, it have been reflecting in the examination also. Multiple of those questions, जैसे कि December 29, 2024 को ये ऐसे डिस्कस हुआ. Similarly, these aspects have been asked in the examination also. For example, this truth is rarely pure and never simple, and thereby similar connotations have been asked in the UPSC examination. So by showing all of this, what I meant is that कि जो भी यहां पढ़ रहे होंगे, there is a high probability that it will be asked in the examination. So you have to be very very attentive. जब भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मैम की क्लासेस को इस तरीके से रखना है कि फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल ही अटेंटिव हैं क्लास में. सारी चीजें जो मैम ने बोला है, जो भी शब्द बोल रहे हैं, उनकी आप कोशिश करेंगे कि यू विल बी कैप्चरिंग ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स कि अपने नोट्स में बना के रखें. आर यू गाइस गेटिंग और नॉट? Because those aspects will be asked in the examination first thing, and those ideas will be really really helpful in multiple of other aspects also. For example, अगर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जैसा मैम ने कहा, वहां पर लोग फिलॉसफी को इंक्लूड नहीं करते हैं. जैसे अगर कोई इंजीनियर है, so he will not be including multiple of those other philosophies also. He will not be able to integrate, right? And now with you, for example, now अगर आपको ये सारी philosophies की अंडरस्टैंडिंग है, for example Descartes, Spinoza, Leibniz, multiple of those other philosophers also, rationalists, other aspects. तो अब ये सारी चीजों को जब आप इंटरलिंक करेंगे, तो what will happen? Your answers will be enriching. So this is the same aspect जो मैम ने बताए हैं. Next is now what you have to expect. Take down this one piece of, मतलब जो जहां पर भी आप लिख रहे हैं. Now what you are expecting from these classes, you should be jotting it down. 2 मिनट दे रहा हूं. I am giving you 2 minutes. Just jot down all of those aspects that you are expecting from these classes. आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी एस्पेक्ट्स हैं जो आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपका टारगेट क्या है, क्या टारगेट है कोर्स से रिलेटेड, ऑल ऑफ दैट within 2 minutes you should be writing down in a piece of paper. Everyone, your time starts now. 54, 56 तक लिखेंगे. Everyone, please. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लेक्चर्स से और इन क्लासेस से, और क्या मार्क्स आप टारगेट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट यू शुड बी राइटिंग विद इन 2 मिनट. मैम ने कहा ना कि लिखना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिमाग में बहुत सारे थॉट तो आते हैं, लेकिन जब लिखने वाली बात आती है तब लिखा नहीं जाता. सर क्यों ऋतुराज? लिखो फिर. लिखना जरूरी है. अभी यहां से राइटिंग इज स्टार्ट वी आर स्टार्टिंग योर राइटिंग. तो कोशिश करना है कि आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग करना शुरू करना है. तो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, फर्स्ट नुआंस ऑफ दैट. विद इन 2 मिनट वॉट एवर योर थॉट्स आर, भाई बहुत कुछ सुन लिया ना, वी शुड बी राइटिंग. लास्ट 1 मिनट.
So now time is up. Now many of us are in the different stages of learning, right? बहुत सारे लोगों ने पहली दफा जब ऐसे लिखा होगा शायद वो स्कूल डेज में लिखा हो. ऐसे कितने सारे लोग हैं? How many of you have written your essays? Many, 90% of you have written your essays during your school days, right? Now अब उसके बाद तुरंत यहां पर अब essays लिखने हैं, and that too, for example 1200 words. सर यहां तो सर 150 वर्ड्स के आंसर नहीं लिखे जा रहे हैं, 250 वर्ड्स के आंसर नहीं लिखे जा रहे हैं. Now you are telling us that you will be writing 1200 words essays, and that is, sir, now it will be becoming next to impossible task, right? तो first thing is this, अभी हमें जो भी हमने ये जो पॉइंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस लिखे हैं, अब जब क्लासेस प्रोसीड्स हो रही होंगी, जब भी क्लासेस में सारी चीजों का डिस्कशन हो रहा होगा, और जब भी आपके ये सारे इश्यूज एड्रेस हो जाएं, तो टिक मार्क करते हुए चलना है, बिकॉज दीज वर एक्सपेक्टेड थिंग्स, है ना, कि ये एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने, एंड वी हैव गॉट ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो. ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी कवर्ड, ट्रस्ट मी, बिकॉज कृष्णा सेज इन भगवद गीता दैट नायम लोकास्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना. नायम लोकास्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना. दैट इज फॉर अ डाउटिंग सोल there is no happiness neither in this world nor in the other, so you have to trust the process. First thing is very very clear कि पहले तो process को trust करना है, and that with that now let's see what is the significance of these essays. तो that is what we have said कि सर कि 150-250 वर्ड्स के आंसर्स लिखे नहीं जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं सर 1200 वर्ड्स के एक पूरा ऐसे ही लिखना है कि नहीं, 12 पेज भरने हैं, राइट? एंड वो कैसे पॉसिबल होगा सर? And thereby we have to, for example, now with essays also, as ma'am said, कि कोई एक fixed source नहीं है from where we should be studying, right? जैसे सोसाइटी के लिए है तो now we have multiple of those other aspects कि ये टेक्स्ट बुक्स हैं, इनको पढ़ना है. With respect to essays, which source to follow, right? अब उसको compile करना है from multiple of those other aspects, other sources also. अब वहां पर आपका effort बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? और उसी एफर्ट को हम लोग जो हमारे एस्पेक्ट्स में से वो विल बी मिनिमाइजिंग फ्रॉम आवर एंड की आपका टाइम जो हो इट इज मेजरली विथ रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिसिंग ऑफ ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स. वो जो बेसिक नुआंसेस हैं, डाटाज हैं, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम हियर. एंड नाउ एक फॉर्डर मटेरियल मिल गया, यू शुड बी जॉटिंग डाउन एंड प्रोवाइड दैट इन अ स्ट्रक्चर्ड, प्रोवाइड ऑल ऑफ दोज डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर टू राइट अ गुड एसेज. वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लिसिट सिग्निफिकेंस कि इस एसेज में से मार्क्स कितने आते हैं. एनी आइडियाज कितने मार्क्स आते होंगे टॉपर्स के? 125 130. सर आपका नाम क्या है? आदित्य ने बताया 125 130. अगर आप देखोगे अपूर्वा पांडे के हाईएस्ट स्कोर थे 175. इनकी मार्कशीट में लेके आया, मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि देयर इज नो अदर पेपर को आपका ऑप्शनल को छोड़ दिया जाए तो देयर इज नो अदर पेपर विच प्रोवाइड्स यू दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्कोर दैट बिग. 70%, अप्रोक्सीमेटली 70%, 70.4%. कोई है ऐसा पेपर? आप मुझे बताओ, कोई है ऐसा, मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि यू शुड बी गेटिंग दीज स्कोर्स, मतलब कि यू आर गेटिंग दीज स्कोर्स? नो अदर पेपर. फॉर एग्जाम्पल अपूर्वा पांडे गॉट 175 मार्क्स. For example, Priyadarshini Bhattacharya, she got 176 marks, 70.4, approximately 70.4. कोई ऐसा ऑप्शनल है ही नहीं, मतलब या फिर कोई भी दूसरा जीएस सब्जेक्ट भी नहीं है. होता है क्या कहीं पर? एथिक्स में आते हैं फिर भी अगर आप देखोगे तो you'll be getting 162, 161 हाईएस्ट गया है. Not this, 175, 176 people have got. मतलब जितना आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जितना एक्सप्लोर किया है, there is a high probability that you will be getting very good scores here in the essay paper. No other paper gives you this kind of opportunity to score this particular marks also. So irony is, what is irony here? That is कि ये opportunity तो दे रहा है आपको 70% स्कोर करने के लिए, लेकिन there is no separate source, कोई fixed source नहीं है. कैसे पढ़ना है? That you don't know from where we have to study. All of your GS syllabus that you have covered, that is only notes for you. How to apply that in the mains examination? It is art.
Are you guys getting or not? That is why मैम said कि एक कोई सोर्स है ही नहीं, है ना वो। और जो आपका जो मेहनत है ना, वो जो कंपाइलेशन वाला जो मेहनत है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थीम्स, विल बी गोइंग इन अ थीम वाइज मैनर एंड विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट, सो दैट आपका वो टाइम बचे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। बिना लिखे वो नहीं आता है, और हमेशा एक रेजिस्टेंस होगा, देयर विल बी ऑलवेज अ रेजिस्टेंस दैट कि बाद में देख लेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेता हूं, कुछ और देख लेता हूं, बट यू विल नॉट बी राइटिंग। वो उसी रेजिस्टेंस को कम करना है हमें। आर यू गाइस गेटिंग और नॉट? एंड दिस इज अ आयरनी कि जो ऐसा पेपर जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, वो उसके लिए कोई ऐसा सेपरेट एस्पेक्ट नहीं है कि फॉर एग्जांपल whatever knowledge that you have got from other aspects you have to integrate here, right? अब उसके बाद है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर में, इस पेपर में इट इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। द मोर क्रिएटिव यू वुड बी इन द पेपर, द मोर मार्क्स, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट विल बी गेटिंग मोर मार्क्स इन दिस। आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस का है। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर ये यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में है, if it is a question, if there is a question, same question on universal civil code, तो अगर GS1 में लिखना होगा, तो for example in the society they have asked question on universal civil code, you'll be writing a societal perspective. For example if it is GS2, तो politics, polity and governance में पूछेंगे तो political perspective लिखेंगे। ethics में एक बार पूछा था उन्होंने, तो यहां पर क्या होगा, ethical perspective होगा। multiple of those values you'll be bringing in, right? rigid approach है, यहां पर आप बहुत रिजिड हो जाते हो। लेकिन यहां पर कुछ है क्या आपके एसेज में, अगर यूसीसी पूछता है, ऑल्दो दे हैव आस्क्ड, यहां पर देयर इज नो सच कन्फाइंड अप्रोच, यू हैव टू वेरी वेरी ब्रॉड इन योर थिंकिंग। समझ में आ रहा है क्या? यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दोज डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशंस, हर एक डायमेंशन को एक्सप्लोर करना होगा। ये अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती। दिस ऐसे पेपर प्रोवाइड्स यू दैट, एंड द मोर यू एक्सप्लोर, there is a high probability that you'll be getting very good score in the essay paper, ki social, political, economic, multiple of those other aspects also. And even with respect to newspapers, जो भी newspaper में अभी से पढ़ रहे हैं, all of those aspects, कि जैसे मैम ने एक एग्जांपल दिया था कि for example when you read lot of those things, कि कुछ पढ़ रहे हैं, तो it is always to read something, it provides you that inertia to write good answers on certain other aspects। कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे पूछा गया है, आप आप पढ़ के गए हो, भले ही उस टॉपिक पे नहीं आया है, लेकिन अगर आप पढ़ के गए हो तो इट विल बी मतलब यू बी मोर कॉन्फिडेंट देन अदर पर्सन हु हैज नॉट स्टडीड। वो क्लूलेस था और चला गया, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, बिकॉज ही विल बी इंटरलिंकिंग विथ अदर कॉन्सेप्ट्स, वो इंटरलिंक कर ले जाएगा। इसलिए पढ़ते रहना है। समझ में आ रहा है क्या? कि बहुत मतलब कि पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट प्रोवाइड्स यू, दैट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ मोमेंटम, एंड देयर बाय डू नॉट टेक इट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर थिंकिंग कि मैं कुछ कंटेंट ही डाल दूं, कि जो भी पढ़ा हुआ है वो डाल दूं, दैट विल नॉट बी हेल्पिंग यू। दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक फ्लो में लिखना, दिस इज एन आर्ट। और यही आर्ट हमको इनकॉर्पोरेट करना है, सीखना है ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस। समझ में आ रहा है एवरीवन? सो दिस इज हाउ वी विल बी थिंकिंग, एंड देयर बाय कि एक क्वेश्चन नॉर्मली जो आप लोग लिखते हैं कि सर कि विच टाइप ऑफ टॉपिक वी शुड बी चूजिंग, एज मैम हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड दैट you should be choosing that topic in which you are more emotionally invested. You are most, मैं एक एग्जांपल दूंगा, you are most emotionally invested, कि किसी ने सोचा कि मैं जरा हट के लिखूंगा, कि मैं ऐसा लिख दूंगा कि बस कि ऐसा किसी ने लिखा ही नहीं होगा। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसी ऐसे के पेपर में लिस्ट यहां पर होगी और आपका नाम जरा हट के ही हो जाएगा, नॉट इन द लिस्ट। तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि मैं बिल्कुल जरा हट के लिखूंगा, है ना, कि मैं बिल्कुल ऐसा लिख दूंगा कि बस सारा फिलॉसफी ऑप्शनल का पेपर मतलब कि फिलोसफिकल ऐसे आया और बहुत सारे फिलॉसफी ऑप्शनल वालों के जो ऐसे में मार्क्स हैं वो बहुत कम है, बिकॉज दे हैव जस्ट रिटन ऑल ऑफ दोज फिलोसफर्स, सिर्फ फिलोसफर ही लिख दिया है और उन्हीं के ही आइडियाज को हर जगह से रिलेट कर दिया है, एंड देयर बाय इट बिकेम मैकेनिकल। ये भी नहीं करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अपूर्वा पांडे की बात कर रहे थे, यस, एंड शी वाज हैविंग PSIR एज ऑप्शनल, उनके मार्क्स आए हैं 175, PSIR ऑप्शनल।
she studies definitely कि she'll be studying multiple of those aspect related to women. अपने ऑप्शनल में ही पढ़ा होगा उन्होंने, काफी कुछ पढ़ा होगा. Women feminine perspective they have studied, and thereby Apurva Pandey, being woman, she has written the essay on this topic. That is, if development is not engendered, it is endangered. Cliche combination, लेकिन जिसमें आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो, जो आपसे आता हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, दैट ऐसे यू विल बी चूजिंग. समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं कि पता चला कि कुछ क्लूलेस थे लेकिन बस स्मार्ट दिखाना है स्मार्ट, एंड देयर बाय उन्होंने ही बोला स्मार्टी ब्रो, एंड देन गेव यू सर्टेन मार्क्स, कुछ कम नंबर देके वो आगे निकल गए. दैट शुड नॉट बी हैपनिंग. क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू चूज वेरियस अदर एसेज ऑल्सो, वेयर जैसे वुमेन राइटिंग ऑन वुमेन, क्लीशे ऑन अ क्लीशे टॉपिक वुमेन, बट क्लीशे कॉम्बिनेशन. लेकिन क्या है, यू शुड बी चूजिंग दोस एसेज इन विच यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड, जो आपसे आता हो. फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा भी एग्जाम्पल देता हूं. प्रियदर्शनी भट्टाचार्य, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, 176 marks. She has written the essay on fulfillment of new woman in India is a myth. Fulfillment of new woman in India is a myth. Having sociology optional. Women के बारे में बहुत पढ़ा होगा इन्होंने, है ना? She will be having. आप बिल्कुल गॉज इन कर सकते हैं, है कि नहीं? पढ़ा तो होगा ही. एंड क्लीशे कॉम्बिनेशन. अब वुमेन उन्होंने इंट्रोडक्शन इस तरीके से किया, मान लीजिए शी टोल्ड कि इस तरीके से इंट्रोडक्शन किया, ये इस तरीके से शुरुआत किया हमने, बट अगेन दिस इज अ क्लीशे कॉम्बिनेशन. तो ये नहीं सोचना है कि मैं बिल्कुल जरा हटके ही लिखने वाला हूं, एंड आई विल बी डूइंग बिल्कुल ऐसा कि किसी को समझ में ही ना आए. फिर तो अगर समझ में ही नहीं आया तो फिर तो किस चीज के मार्क्स हैं? आर यू गाइस गेटिंग अ नॉट? सो ये एक डाउट दिमाग में नहीं रखना है, दैट इज कि किस तरीके का एसेस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं. तो यू शुड बी अटेम्प्टिंग दोस टाइप ऑफ एसेस in which you are emotionally invested, and thereby if you have presented all of those content in a structured manner, it will be, for example, bringing you more and more marks in essay paper. Are you guys getting or not? तो पहले तो क्या करना है, टॉपिक पे कमांड करो कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन दीज क्लासेस आर हैपनिंग, तो पहले जैसे एक वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स चल रहे हैं तो यू विल बी कलेक्टिंग ऑल ऑफ दोस फॉर्डर. याद करो, कंटेंट को याद करो. याद करना क्यों जरूरी है? Because then only you can put that in order. कुछ लोग कहते हैं सर मैंने समझ तो लिया है बट याद मुझसे नहीं होता. याद नहीं करना ही पड़ेगा, उससे होता ही नहीं है. यू हैव, अगर वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, देयर यू हैव टू पुट इन डाटा, है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसके दिमाग में अभी ये कॉन्सेप्शन है कि फॉर एग्जाम्पल कि सर मैंने तो समझ लिया है और समझ के मेरा यूपीएससी हो जाएगा? ऐसा कोई व्यक्ति है? किसी को ऐसा लगता है? Now you have to mug up various other facts also. बहुत सारे फैक्ट बहुत याद करना पड़ेगा, बहुत याद करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? So that is very very important. For example, श्रेया श्री कहती हैं, she also got very good marks in essays. कहती हैं कि in philosophical topic I chose those topic which has underlining values because I was confident with respect to ethics. और जो वैल्यूज हमारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं, एथिक्स का पेपर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, एंड देयर बाय दोस टॉपिक आई इंटरलिंक्ड, एंड देयर बाय इन दोस टॉपिक्स आई वाज हैविंग कमांड. तो लगती है कि इन सोशल एंड पॉलिटिकल टॉपिक्स शी वाज मोर कंफर्टेबल रादर देन द टॉपिक इन विच देयर इज अ बेंड टुवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी में आप थोड़ा वीक हैं और आपने चूज कर लिया कि मैं बिल्कुल हटके लिखूंगा, अब टेक्नोलॉजी में ही लिखूंगा, जीवन भर पढ़ा नहीं है लेकिन आई विल बी राइटिंग ऑन टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियसली आप गलत ही लिखोगे या फिर उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे, है कि नहीं? तो ये कभी कोशिश नहीं करनी है. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस. एक टाइमिंग वाला एस्पेक्ट जरूर है. आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस इन दिस क्लास, और उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करेंगे. तो फॉर चूजिंग द टॉपिक, नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ विद इन दिस 3 hours यू हैव टू चूज 2 topics, right? You have to write essay on कितने टॉपिक्स पे? 2 टॉपिक फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो जब आप चूज कर रहे हैं तो यू शुड बी टेकिंग सर्टेन टाइम विद रिस्पेक्ट टू चूजिंग. पहले तो अच्छे से चूज करो, फॉर एग्जाम्पल 4-5 मिनट ये प्लान करना है कि विद रिस्पेक्ट टू कि विच टॉपिक, इन विच टॉपिक आई एम मोर इमोशनली इन्वेस्टेड. मुझे नॉलेज किस पे है, किसके बारे में मुझे डाटा फैक्ट पता है, सारे करंट अफेयर्स मुझे पता है, मैं किस में ज्यादा इंटरलिंक कर पाऊंगा. टू फाइंड आउट दैट. ऐसे ही नहीं कि जंप कर गए कि
पता ही नहीं है और उन्होंने आपने सेलेक्ट किया और लिखना शुरू कर दिए, किस में इंट्रोडक्शन मतलब कि मैं बहुत अच्छा बना सकता हूं, किस में मैं कंक्लूजन बहुत अच्छा बना सकता हूं, ऑल ऑफ दैट, देन यू हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस प्रॉपर टाइम इन ऐसे पेपर, ऐसे टाइम में ऐसे के पेपर में टाइम क्रंच नहीं है, बट टू राइट इन अ स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, कंसाइज वे एंड इफेक्टिव एंड इंपैक्टिव वे, यू नीड सर्टेन एस्पेक्ट्स। उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग यू शुड बी गिविंग 15-20 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द ऐसे, 15-20 मिनट वहां पर भी देना है आपको, एंड देन यू विल बी राइटिंग। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया है कि इंट्रोडक्शन कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ दोज एस्पेक्ट, कौन कौन से डायमेंशंस आप एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट, एंड कैसा कंक्लूजन होने वाला है, एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन से कौन से कनेक्टिंग वर्ड से इंटरलिंक करेंगे, किस तरीके से ये ऐसे प्रोसीड होगा, एक्सप्लोर क्या क्या डायमेंशंस करेंगे, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू डू हियर। वी विल बी टीचिंग यू हाउ टू डू दोज ब्रेनस्टॉर्मिंग, अच्छे से बताएंगे, बट जस्ट टू गेटिंग नैक ऑफ दिस कि किस तरीके, मतलब कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर एसेस, दीज आर द टाइमिंग्स। एंड राइटिंग विद इन, मतलब कि राइट आपको लिखना है 60 मिनट, 1 घंटा लेना है लिखने के लिए, एंड देयर बाय रिविजन की, फॉर एग्जांपल गोइंग बैक, अंडरलाइनिंग, कुछ छूट तो नहीं गया है, कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट छूट तो नहीं गए, अंडरलाइनिंग ऑल ऑफ दोस कीवर्ड, यू विल बी डूइंग ऑल ऑफ दैट। नाउ विद दैट आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर, बट बिफोर दैट इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी। अभी जब क्लास अभी खत्म कर रहे हैं, इसके बाद भी मैं बाहर बैठा हूं, यू कैन कम टू मी, यू कैन आस्क योर डाउट्स, क्वेरीज ऑल्सो रिगार्ड, मतलब एकेडमिक डाउट जो भी एस्पेक्ट्स हैं, आई विल बी टेकिंग दैट, और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि मतलब कि जो रिसेप्शन में हो सकते हैं, विल बी कनेक्टिंग ओवर देयर। सो थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग अगेन, थैंक यू।